ہمیں لگتی تھی نا زندگی کی تمام انرجیز جیسے ان کے ساتھ ہوتی ہو ہمیشہ. ایم سوری ام کلثوم سیال، آپ بات کر رہی تھی کوئی، وہ میرے خیال میں رستے میں رہ گئی. میں چونکہ ان تھوڑا سا لیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوئی ہوں. سمینا اور اچھا، آپ کوئی بات کریں. میری درخواست ہے سب سے جو بات نہیں کر رہی وہ اپنا مائک بند کر دیں کلات سے، نسیمہ، تاکہ پھر جو باقی بات کر رہے ہیں ان کی آواز آ سکے. ٹھیک ہے، اپنا مائک بند کر دیں. صفیہ بی بی آپ اپنا مائک بند کر دیں، جب بولنا ہوگا تو پھر کھول لیں گے. ٹھیک ہے، اور پشپا کماری بھی آ گئی ہیں. تو ناہیدہ آپ شروع کریں گی؟ جی میڈم، میں جسٹ آغاز کرتی ہوں اور آپ آج کا جو ان کے حوالے سے اس پہ آپ ہی بات کریں گی. میں تمام دیگر رہنما خواتین کو پودا کے اس ہفتہ وار ویبینار میں خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ اب سب کو معلوم ہے کہ پودا پاکستان ہر ہفتے بروز بدھ 3 سے 4:30 بجے تک ہم آن لائن ملتے ہیں، ایک زوم ویبینار کرتے ہیں اور اس کے اندر دیگر رہنما خواتین جتنی ہیں پاکستان بھر کے مختلف اضلاع سے، وہ اس میں شامل ہوتی ہیں اور اپنا جو کام اپنے علاقوں میں خاص طور پہ خواتین کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ترقی کے عمل میں جو خواتین کی زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے یا ان کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے اس میں شامل ہوتی ہیں. اور آپ لوگ وہ کام باقی دیگر رہنما خواتین کے ساتھ اس پہ تبادلہ خیال کر رہی ہوتی ہیں اور بات چیت کر رہی تھی. یہ بہت حوصلہ بڑھاتا ہے ہم سب کا کہ دیگر رہنما خواتین پاکستان کے کونے کونے میں اس ملک کو، اس دھرتی کی میں خواتین کے جو رہنے کی جگہ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی بھی جگہ پہ کوشاں ہیں. پودا پاکستان کا ایک جو اہم کام ہے، جو ایک خواب ہے، وہ پاکستان کے اندر صنفی مساوات کے لیے کام کرنا ہے. اور اس میں مختلف جو بھی کام ہو جس کے اندر ہم عورت اور بچیوں کی معاشرے کے اندر جو سپیس ہے، جو ان کے لیے جگہ ہے، اس کے لیے ڈیمانڈ کرنا، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، چاہے وہ ہسپتال ہوں، چاہے وہ تھانوں کے اندر جب ہماری خواتین پہنچتی ہیں تو وہاں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے، ان کی کمپلین کو درج کرنے کے لیے جو تجاویز اور سفارشات ہوں اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہی دیہات کی عورت جو زمین کے ساتھ منسلک ہے، ان کے حق کے جو جائیداد ہے اس کے حوالے سے زمین کے اوپر جتنا وہ کام کرتی ہیں اس کے ساتھ ان کی اونرشپ کتنی ہے، اس سب کو میں بہتری لانے کے لیے اب سب کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اور آج کا جو ویبینار ہے یہ ہماری ایک رورل ویمن لیڈر جو آپ سب کی بہت پیاری ویرو کوہلن ہے، جنہوں نے ابھی 31 اکتوبر کو ہم سب سے جدا ہو گئی ہیں. تو ان کی یاد میں آج کا ویبینار جو ہے ہم اس میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بات کر سکیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کے ساتھ گزارے ہوئے جو اچھے لمحات ہیں ان کو یاد کر سکیں. تو میں اس آگے اب جاؤں گی میڈم سمینہ نذیر صاحبہ کے، جو کہ پریزیڈنٹ پودا ہے، کہ آپ میڈم جو پودا کے ساتھ ان کا تعلق ہے ویرو کوہلن کا، اور جتنا لمبا ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا، اس کے حوالے سے جو ہے اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ میڈم. جی شکریہ ناہیدہ، اور تمام ساتھیوں کا شکریہ جو ہمارے ساتھ آج کی میٹنگ میں شامل ہیں. میرے لیے بہت ہی تکلیف کی یہ بات ہے کہ آج ہم ویرو کو اس طرح یاد کر رہے ہیں، اور جتنے ان کا انرجی اور سب کچھ ہے، یقین نہیں آتا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں. لیکن اس سال کی جو کانفرنس تھی اس کے سلسلے میں میری ان سے بات ہوئی تھی. یہ ان کی تصویر پچھلے سال کی ہے، 2022 کی. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ہم دونوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ وہ اس سال نہیں آئیں گی. تو پھر مجھے کہتی ہیں کہ اچھا پھر وہ جو میرے سفر والے پیسے ہیں وہ مجھے بھیج دو، میں نے کچھ بھٹا مزدور عورتوں کی مدد کرنی ہے. کیونکہ بھٹا مزدور عورتوں کی مدد کرنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن تھا، نہ صرف عورتوں کا بلکہ فیملیز کا بھی. اور وہ خود جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بھٹا مزدور تھی، جبری مشقت کرتی تھی، بانڈڈ لیبرر تھی وہ اور ان کا پورا خاندان. سندھ میں ایک جاگیردار کے علاقے میں رہتے تھے، اور انہوں نے پہلے خود آزادی حاصل کی، اپنے آپ کو آزاد کیا، اور پھر انہوں نے اپنی فیملی کو آزاد کیا، اور پھر وہ ساری زندگی بھٹا مزدوروں کو
आज़ाद कराती रही। आज से तकरीबन 15 साल पहले हुकूमत पाकिस्तान ने एक कानून पास किया था जिसमें जबरी मशक्क़त और बटा मजदूरी की जो जबरी मशक्क़त है उसको जुर्म करार दिया था, और उस पे हेबियस कॉर्पस जो एक हमारा कानून है जिसमें आप बाजियाब करा सकते हैं लोगों को, तो वो कहा था कि इसके जरिए आप जाके उनको बाजियाब करा सकते हैं। तो वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के पहले वो कंप्लेन करते थे पुलिस स्टेशन में, और फिर ये हर मिशन में उनके साथ जाती थी HRCP के लोगों के साथ, और जाकर ये अपने जहां भी इनको पता चलता था कि यहाँ पे कोई खानदान जबरी मशक्कत में कैद है, क्योंकि वो जागीरदार जो होते हैं ना, फिर इनको वो अपने इलाके से निकलने नहीं देते, वो इनको कन्फाइन कर देते हैं। तो इन्होंने बहुत लोगों को आज़ाद कराया। इनके साथ हमारे एक और साथी थे, डॉक्टर गुलाम हैदर, ग्रीन रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के वो सदर थे। वो भी इनके साथ बहुत काम करते थे, और वही इन्हें हमारी कॉन्फ्रेंस में लेकर आए थे तकरीबन 10 साल पहले। तो उस वक़्त से हमारा इनके साथ ये रिश्ता बना, और बीच में बीमार भी हुई, बहुत सी बीमारियों से लड़ी, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने हिम्मत हारी हो। तो बहुत हमें सदमा हुआ है। और इसके अलावा 2013 में इन्होंने, जो थे 2013 के इलेक्शन थे, उसमें इन्होंने जनरल सीट पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन के खिलाफ। और हमने, पौधा ने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने सॉरी, इसमें हमने जो है वो, सॉरी मेरा फोन ऑन रह गया किसी तरह। तो हमने जो है वो उसका नाम था वीरू गोज टू पोल। तो फरजाना बारी की जो बेटी है तजीन बारी, उन्होंने पौधा के साथ मिलकर एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने इसकी सारी कैंपेन को डॉक्यूमेंट किया था। और वीरू ने मुझे बताया कि मुझे पता है कि मैं शर्जील मेमन से नहीं जीत सकती, लेकिन मैं एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि एक हिंदू औरत पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकती है, एक हारी औरत लड़ सकती है, गरीब औरत लड़ सकती है, और मेरे से हौसला मिलेगा और औरतों को भी। तो इस विजन और इस अज़म की वो खातून थी, और वी विल रियली मिस हर। इनके बगैर हमारी कॉन्फ्रेंस में रौनक नहीं है। लेकिन ये है कि आज हम उनकी जदोजहद को भी सलाम पेश करते हैं, और आदा करते हैं, वादा करते हैं कि हम इनकी जदोजहद को लेकर आगे चलेंगे। तो मैं आप सबको भी दावत देती हूँ कि आप वीरू की जदोजहद, उनकी जिंदगी और उनके जो भी कोई बातें बताना चाहें तो आप सब शेयर करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया समीना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैडम, मैं क्या वही मैं कहना पहले चाहिए तो बात मैं कर कल सकती सुन। हूँ? जी जी जरूर, मैं आपको ही कहने लगी थी कि आपका हैंड रेज है, शायद आप मीटिंग में हैं किसी में, जी तो जी, बात अस्सलाम पहले कर वालेकुम लेते जी सब साथियों को। और हैं। वालेकुम इसमें कोई अस्सलाम। शक नहीं कि मौत बरहक है, और जो भी जीरो इस जहान में आया उसने वापस जाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब जब चले जाते हैं तो वो अपनी बहुत सी यादें, अपने बहुत से काम ऐसे छोड़ जाते हैं कि वो फिर जिंदगी भर अमर हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि वीरू को ही भी जो है उसी में एक नाम है, जो रोल मॉडल है, ना सिर्फ बेटी के लिए बल्कि तमाम उन खवातीन के लिए जो कि मेहनत कश हैं, मेहनत करते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो वीरू कोई की जो है खिदमात को मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ पौधा बल्कि उनके इलाके की जितनी खवातीन है वो सब हमेशा याद रखेंगी। अम, बहुत सादा खातून थी, बहुत सादा, और उनकी सादगी में जितनी जिद्दत पसंदी थी वो समझने वाले ही समझ सकते हैं कि इतनी सादगी में भी वो आज के दौर में एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और इतनी स्ट्रांग एक्टिविस्ट थी कि उसको कोई हिला नहीं सका। चाहे वो पार्लियामेंटेरियन आए, चाहे उनके लिए जितनी भी मुश्किलात सामने उनके रखी गई, तो उसने हमेशा उसको जीता है।
تو میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. اللہ میاں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور ہم سب کو بھی میں ان کے ساتھ ہی کہ ہم سب کو ایسا کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم جاتے جاتے نہیں ہوں گے لیکن ہم کچھ ایسا کر دیں کہ کچھ لوگوں کے لیے راہیں کھلی رہیں اور کچھ لوگوں کے لیے ہم رول ماڈل بن جائیں اور کچھ کام ایسے بھی ہمارے ہوں کہ جو ہماری آخرت میں ہماری مغفرت کا باعث بن سکے. تو بہت شکریہ. میرے پاس ان کے لیے کوئی اور زیادہ لفظ نہیں ہے. وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ امی کلثوم سیال صاحبہ. میں آپ نے ویرو کوہلن کے حوالے سے اپنے خوبصورت الفاظ میں ان کے لیے اظہار خیال کیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا. میں بہت سی وہ ساتھی دیہی رہنما خواتین جو آج پہلی بار ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں شامل ہوئی ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ویرو کولن کے جو ان کا میموریل اجلاس ہے، ان کا تعزیتی اجلاس ہے، اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں. اور میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں خاص طور پہ غفرانہ آرائن صاحبہ کو، جو کہ تھینک یو. جو کہ ریجنل ہیڈ ہیں سندھ کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی. میڈم خوش آمدید. اور اس کے ساتھ دیگر وہ تمام بہنیں جو اس وقت صرف ویرو کوہلن کی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے، ان کے ساتھ جو ہمارا ربط ہے اس کی وجہ سے آج کے ویبینار میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. خوش آمدید میڈم. آپ بات کرنا چاہیں گی غفرانہ صاحبہ؟ میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ جی بھی ویرو کوہلن کے جی جی حوالے سے جو بات شکریہ کرنا چاہتی ہیں شکریہ. ضرور بتائیے. اچھا جی ناہیدہ، غفرانہ کو دعوت دیں اور اس کے بعد آپ پشپا کماری کو دعوت دیں. اور جی میڈم. میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنا مائک بند کر دیں کیونکہ ڈسٹربنس آ رہی ہے، تو صرف اسپیکر کا مائک آن ہو. تھینک یو. شکریہ میڈم. جی میڈم غفرانہ صاحبہ، غفرانہ جی آرائن، جی جی پلیز جی بات جی کیجیے گا. بالکل. ہاں چونکہ آج ہم سب، میں تو فرسٹ ٹائم ہی آئی ہوں آپ کے یہاں، مطلب نام بہت سنا ہے کہ یہاں خواتین جاتی ہیں، دیہی خواتین. اور ویرو شروع سے ہی، جب سے ہمارے ساتھ، میں 99 سے ویرو کے ساتھ رائٹس میں آئی، تو تب سے ویرو کو میڈم جانتی اگر ہوں. آپ جب اپنا ویرو، جی ایکسکیوز جی میڈم ایک تھوڑی سی گزارش ہے، اگر آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں تو. جی 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 بالکل از اٹ بالکل. پاسبل؟ جی تھینک جی یو. جی تھینک یو. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو میڈم. جی جی ٹھیک ہے. ویرو کے ساتھ تعلق بہت پرانا ہے اور مرتے دم تک تھا، اور ویرو کی کالز بھی آتی رہی. اور جب یہ سب ہوا تو میں پہنچ نہیں پائی کچھ آفیشیل اپنی مصروفیات کی وجہ سے، مگر بہت ساری چیزیں جو ویرو کے ساتھ ٹائم گزرا، جب اسٹرگل اسٹارٹ کی. میں 99 سے جب یاد کر رہی تھی ویرو کو، تو ویرو ایک عام گھریلو عورت تھی، اور جس کے بہت سارے، مطلب آزادی کے بعد جب وہ آزاد ہو کے یہاں کیمپس میں آئی تو میری وہیں پہ ملاقات تھی، اور اس کا آفس آنا جانا ہوتا تھا. عموماً جب بھی کسی بچے کی پیدائش ہوتی تو فائنینشیل اس کو نیڈ ہوتی تھی. اور اس ٹائم میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، وہ اسپیشل ٹاسک فورس تھی حیدرآباد میں، اب یہ ریجنل آفس ہے ہیومن رائٹس کا. تو ٹاسک فورس اس زمانے میں بانڈڈ لیبر پہ شکیل پٹھان کی ڈیتھ کے بعد ایکٹیولی، ان کی ڈیتھ کے بعد بھی کام کرتی رہی. تو ان کو فائنینشیل بھی سپورٹ کیا جاتا تھا یہاں سے، تو ملاقات رہتی تھی. تو میں اسے کہتی تھی کہ ویرو اب بچے بہت ہو گئے، اب بس کر دو. کہتی بس ہمارا کچھ ایسا سسٹم ہے کہ بچے ایسے ہی ہوں گے. شاید 12ویں بچے کی پیدائش تک وہ یہ سلسلہ اس کے بعد شاید وہ رک گیا. پھر اس کے بعد ویرو نے 2004 میں کافی ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے جوائن کیا اپنا یہ جو ہے ڈاکٹر حیدر صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کیا. اور پھر یہ ایچ آر سی پی بھی آتی رہی، بھی کام کرتی رہی ایکٹیولی. جی اس طرح سے صفیہ یہ ہے اور کہ زئی اپنا مائک بند کریں. چلو کر دیا. جی جی اسی طرح پھر یہ کہ ویرو سے ملاقات ہوتی رہی. پھر ویرو یہاں سے شفٹ کر گئی جب کیمپ بنا ان کا. انہوں نے ان کی جدوجہد سے، ان کی کوششوں سے، جب حیدر صاحب، ڈاکٹر حیدر صاحب کے ساتھ ان کا، تو پھر یہ ہمت آباد کی طرف چلی گئیں. اور پھر دوسرا کیمپ بھی، ٹنڈو حیدر کا کیمپ بھی انہوں نے بنایا. اس طرح سے جدوجہد کرتی رہی اور ہاریوں کو آزاد کرواتی رہی، اور یہ کانفرنسز اور میٹنگز پہ اسلام آباد، لاہور جاتی رہیں اور رابطے میں رہیں. ویرو کے کچھ بچے ابھی بھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے جو ہاری کیمپ ہے ہوسٹڑی میں، وہاں رہائش پذیر ہیں. ویرو کے جو بیٹے ہیں تو ان سے بھی واسطہ رہتا ہے. ویرو آتی رہی اور اسی طرح ان کا یہ سلسلہ جاری رہا. اور ویرو کا مزاج بڑا سمپل تھا، جیسے ابھی میری ساتھی نے بھی کہا.
कि वो एक सादा सी खातून थी, उन्होंने मतलब अपने जो हारी खवातीन थी उनके लिए काम किया। जब हमसे भी बात होती तो वो मुझे हमेशा उनको उफराना कहना नहीं आता, कहती उफराना बेटा ये मसला है। तो जब फोन करती या आती तो उनके अंदर सादगी भी थी, और सादगी के साथ साथ वो जिस तरह से किसी भी फोरम पे खड़े होके बात करती, या हमें कभी भी उनको देखा बात करते तो उनमें वो कॉन्फिडेंस था। वो एक अमूमन हमारे यहाँ खवातीन में कम आ पाता है, अ, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो या किसी भी उससे पसमानदा तबके से हो। मगर वीरू में कॉन्फिडेंस था, और उसने जो स्ट्रगल की, फिर जैसा कि अभी बताया कि इलेक्शन के लिए वो जब खड़ी हुई तब भी उनसे राब्ता रहा। वो बताती रही जय कि मतलब मैं जीतूं या हारूं मगर कोशिश मैंने करनी है। तो कोशिश उन्होंने, और आखिरी टाइम तक भी राब्ता इस तरह रहा कि उनको अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा था। तब भी उनसे, चूंकि डॉक्टर साहब के बाद उनके पास कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं थे कि जो उनको गाइड करे या बताए, तो उनका वीजा नहीं हो सका अमेरिका का डेथ से पहले कुछ टाइम। फिर उनकी जब तबीयत खराब रही तो वक्तन फवक्तन बात करती रही। फिर उनके लिए कुछ और ईमेल्स भी आई जो ह्यूमन राइट्स के थ्रू आई, तो मेरा उनसे राब्ता रहा। तो आखिरी दिनों में तो वो जुड्डो साइड है जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में है, वहां घर तामीर करवा रही थी। जो सैलाब जदगान जो थे, वहां की कम्युनिटी थी इनकी, उसपे जो घर गिर गए थे, तो वो खुद काम करवाने वहां जाती थी और वहां काम करवाती थी। तो मेरा उनसे राब्ता होता था कि आपके लिए ईमेल आई है, ये जवाब आया है। तो वो फिर मुझे रिप्लाई देती थी और फिर मैं उनका कांटेक्ट सारी चीजें शेयर करती थी। तो इस तरह से उनसे एक राब्ता रहा। और उनकी वो जो क्या कहते हैं ना, एक सादगी भी थी, और सादगी के साथ जद्दोजहद, तो वो सारी चीजें मिक्सअप जो हम देखते आए थे शुरू से अब तक। और फिर उनके बच्चों को बड़े होते देखा, बच्चे भी इंडिपेंडेंट हैं। और वो उनकी जो लाइफ स्टाइल है उन्होंने उसको भी इम्प्रूव किया। लोगों के लिए भी उन्होंने सोचा, आखिरी वक्त तक वो लोगों के लिए घर बनवाती रही। वो उनकी जद्दोजहद आखिरी वक्त तक जारी रही, उन्होंने काम किया। ये चीज बड़ी उनकी जो स्ट्रगल की, ये कि उन्होंने आखिरी वक्त तक स्ट्रगल किया, ये चीज उनकी मैं बिल्कुल अप्रिशिएट भी करती हूँ। और बहुत दुख के साथ भी कि हमारी एक एक्टिव साथी, और वो बॉन्डिंग लेबर के अब भी केस लाती थी। जब किसी के साथ कोई इशू होता था या कोई मशवरा करना होता था तो बिल्कुल खुद भी आती थी ऑफिस, और फोन पे भी राब्ते में होती थी। अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो मैं जवाब दे सकती बहुत शुक्रिया गुफराना साहिबा, आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सिंध चैप्टर है वहां से हमारे साथ बात की, और उनके साथ आपका जो भी वक्त गुजरा हुआ है वो तमाम यादें हमारे साथ शेयर की। पुष्पा कुमारी है हमारे साथ। पुष्पा, बहुत शुक्रिया कि आज मुझे आपने गुफराना का की तरफ रेफर किया, कांटेक्ट दिया कि इन्होंने उनके साथ काफी काम किया हुआ है। तो मैंने आपसे पहले उनको दावत दी, गुफराना साहिबा को। पुष्पा कुमारी, आप प्लीज वीरू कोलन के हवाले से हाँ बात करें प्लीज। बड़ी खूबसूरत तस्वीर थैंक आपने और पुश लगाई हुई है साथ वीरू कोलन की। जी। हाँ, बस यादें रह जाती हैं, और लोगों के काम रह जाते हैं, और उनकी ऐसी है। स्ट्रगल रह जाती है। तो इस वजह से मैंने उसको ट्रिब्यूट के लिए मैंने फिर फेसबुक पे और उस पे उसकी याद ताज़ा करने के लिए भी लगाते हैं। है तो वीरू की थोड़ी सी स्ट्रगल पे मैं भी इस तरह से बात करना चाहूंगी कि मेरा पहला एक्सपीरियंस पौधा पाकिस्तान के साथ, जब 2008 और 9 की बात मैं करूंगी, वहां से वीरू जो है वो मुझे हंसते हुए उधर ग्राउंड में खाना खा रही थी नीचे बैठ के। तो बड़ा मैंने उसको कहा कि ऊपर बैठ जाओ, तो कह लगी नहीं, हम बाहरी लोग हैं, हम तो नीचे ही बैठ के खाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि बैठते हैं ऊपर, तुम कुर्सी पे बैठ के। तो कह लगी ऐसे तो मुझे खाने का मजा ही नहीं आएगा। अब ये 2009 पौधा पाकिस्तान का, और ग्राउंड हमारा बड़ा खूबसूरत जो सामने लोक विरसा में है, वहां पे हम जी बैठे थे वाह। सारे सिर के। तो बड़ा एक अच्छा माहौल था। तो वीरू की जो हिम्मत से, हौसले से ही हम बात खुद को जोड़ेंगे, फिर बात करेंगे। मेरे ख्याल में पुष्पा के लिए मुश्किल हो रहा है इस वक्त बात करना। मैं इतनी देर में गुजारिश करती हूँ अपने कुलीग से कि वाजिद आप अगर जो वीडियो के लिए हमने वीडियो एक छोटी सी बनाई है ट्राइब्यूट पेश करने की उनकी डिफरेंट यादों को, आई अगर वो दिखा आई दें डोंट थिंक। जब तक हम हाँ, संभल जाते हैं। तो अच्छा, ये बात तो करें ये कि प्लीज।
16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। और उसके बाद जो है वो एक जो लैंडलॉर्ड है या एक जो फ्यूडल क्लास होता है या जो हमारा जमींदार होता है, उसको दूसरे गांव में इसको बेच दिया जाता है। वो 200 या 300 जितने भी हारी होते हैं उनको बेचा जाता है दूसरे लैंडलॉर्ड के पास। वो उमरकोट में उनको फिर एक दूसरे लैंडलॉर्ड के पास इनकी पूरी फैमिली को बेचा गया और उनको कहा गया कि ये आपके हारी हैं, जैसे स्लेवरी या गुलाम बनाना होता है, इस तरह से। तो ये वीरू जो शुरू में यंग भी थी और इसने सोचा कि भाई ये हम लोग नहीं इसके लड़ तो सकते नहीं है, तो बड़ा उसको परेशानी भी हुई। उसका एक उसकी एक मैं बात आपको बताऊं कि उसके बेटे और उसकी जब जो डॉटर इन लॉ मतलब उसकी बहू को उसके सामने जो है वो पीटा गया और थ्रेट किया गया, तो उस वक्त ये बड़ा उसके लिए मुश्किल था कि उसने उस वक्त जो है उस लैंडलॉर्ड के सामने खड़ी हुई और उसने पहले ही अपनी छोटी बेटी को उठाया और वहां से वो उसने बस पकड़ी है उस गांव से कच्चे से, और वहां से वो उसने दौड़कर जो है वो वहां से उसको escape किया, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड ने उसके गांव में चारों तरफ से उसको घेर लिया था। और उसकी उसकी और वो उसकी बेटे की शादी का दिन था। उसकी हिम्मत देखें उस माँ की कि वहां से उसने उसको बच्ची को उठाया है और वहां से वो उसने बस में चढ़ी है और वो दूसरे गांव जहाँ पहुंची। उसके बाद वहां से उसने अपने भाइयों से किसी तरह राब्ता किया और कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, और वो गांव से उस गांव से वो दूसरे भाइयों के पास अपने आ गई और वहां से जो है उसने कोशिश की कि वो अपने जो दूसरे 25-30 मेंबर हैं जो फैमिली के, उनको किसी तरह से वहां से आजाद कराया जाए। लेकिन उसने फिर किसी तरह वो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो पहुंची है और उसने वहां से जो है वो कमीशन ने उसको कहा कि आपको पुलिस ऑफिसर जो है उमरकोट जो है वहां भेजा जाएगा और वहां आप थाने पे जाएं और अपनी कंप्लेन लिखवाएं और अपनी फैमिली को आजाद कराएं। उसको पता था कि मैं लैंडलॉर्ड के खिलाफ और उस जमींदार के खिलाफ जो है वो मैं नहीं क्या कहते हैं लड़ पाऊंगी, लेकिन उसने उसमें एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो हिम्मत नहीं हारती थी। तो उसके 8 जो है फैमिली मेंबर जो थे वो जमींदार के पास जो थे वो उन्होंने उसको निजी जेलें होती हैं जैसे टॉर्चर सेल होते हैं उसमें उन लोगों को उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और पुलिस स्टेशन जाती रही और ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका साथ दिया। अज़ार आसमा और सब लोग उसके साथ थे उस वक्त, लेकिन वो आती रही। उसने कहा कि नहीं मैं आऊंगी, और वो कभी कभी तो उसके पाँव में चप्पल भी नहीं होती थी। तो मुझे पता है कि वो कभी कभी कोशिश करती थी कि ना पानी जो है वो अपने साथ एक छोटी बोतल ले आती थी और कहती थी कि मैं जो है आऊंगी और मैं लड़ूंगी, मेरे 8 फैमिली मेंबर उनके पास हैं। तो उसने 40 के करीब जब वो पुलिस का उस लैंडलॉर्ड के लिए जब वो उन्होंने आजाद करवाए 40 के करीब जो है उसने, ये 1900 शायद 91 या 90 की बात है। तो उसने 40 के करीब जब अपने वो आजाद करवाए तो बड़ी वो उस वक्त वो खुश भी थी और उसने कहा कि मैं जो हूँ मैं जीत गई हूँ। और एक हमारा आजाद नगर जो है, आजाद नगर एक ऐसी जगह है जहाँ कमीशन ने आसमा ने जब हारी आजाद कराए, वहाँ एक बहुत बड़ा एक जमीन का टुकड़ा है जो आसमा ने इन हारियों को दिया था, जिसमें अब भी बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। उसका नाम रखा गया था आजाद नगर, क्योंकि वो उन्होंने आसमा ने उनको दिलवाया था उस टुकड़ा जमीन का, जहाँ वो अब भी बहुत सारे हारी जो हैं वो आबाद हैं। तो उसने उसको 2009 में जब उसने इलेक्शन में हिस्सा लड़ी थी, और वो मुझे पता है क्योंकि वो टंडो जाम के PS50 वो उसका एरिया है और हल्का है, उसमें जब वो लड़ने के लिए उठी तो आपको शायद पता नहीं है कि शर्जील और ये सारे जो एलीट क्लास के लोग हैं या वो जमींदार लोग हैं, उसके सामने तो कोई वहाँ उस एरिया का, क्योंकि मैं उस टंडो जाम में रह के आई हूँ 20 साल, वहां पे बहुत मुश्किल होता है। वीरू जो है वो उसके सामने खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसके सामने तो आम जो वहां का एक दुकानदार भी नहीं खड़ा हो सकता था। वीरू तो फिर एक वो हारी थी। तो उसने लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, और मुझे पता है कि वीरू ने मुझे बताया था अपनी जर्नी में कि मुझे जब मैं उस इलेक्शन के लिए खड़ी हुई तो पुलिस की गाड़ियां मेरे उसने पीछे लगाई और वो उस टंडो जाम से वो एक छोटे से रक्षा में भी आगे गई, लेकिन डॉक्टर गुलाम हैदर जो इनके साथ थे
انہوں نے پھر اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے ان لوگوں نے رات کے ٹائم 2 بجے کے قریب جو ہے وہ وہاں سے بھاگے تھے. اور یہ ویرو نے کوشش کی کہ میں کسی ایسی جگہ چھپ جاؤں کہ زمیندار کے ہاتھ نہ آؤں. تو ان لوگوں کے پیچھے انہوں نے بہت سارے لوگ بھی لگائے، لیکن یہ بڑی، یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ سیدھی بات کرنے والی اور لڑنے والی، اور اس میں جو فائٹنگ اسپرٹ تھا ہوں وہ بڑا اس کے ساتھ، اس کو روکا نہیں اس نے. اور اس کے اندر وہ ہمیشہ آخری دم تک میرے خیال میں وہ اپنی، جب موت سے لڑ رہی تھی تب بھی، آپ یقین کریں ابھی اس کا چہرہ آپ دیکھیں گے جو ڈیتھ کا، اس میں بھی ایک ایسی والہانہ قسم کی مسکراہٹ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جیت گئی ہوں اور تم یہیں رہو، اور میں اوپر جا کے بھی تمہیں دکھاؤں گی کہ میں جیت گئی ہوں. تو یہ بڑی اس کی ایک خوبصورتی تھی کہ وہ کسی بھی مشکل میں جو ہے وہ چپ نہیں رہی. اور جو امریکہ کا جو فیڈرک ڈگلس ایوارڈز جو ان کو ملا تھا، وہاں پہ ان کو کافی اماؤنٹ میں کچھ پیسے بھی ملے تھے، لیکن یہ اس کو سنبھال نہیں پائی. بہت سیدھی خاتون. تو یہ کہ اس پیسوں سے اس کی اس فیملی کی اتنی ہیلپ ہو نہیں پائی. لیکن یہ کہ ابھی ریسنٹ جو 2 مہینے تھی، 2 مہینے پہلے کی بات ہے، تو اس وقت ایک جرنلسٹ تھے وہ ان کے گھر گئے تھے. اور انہوں نے اس کا انٹرویو کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس میں اس وقت انہوں نے ایک روتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے افسوس رہے گا کہ دنیا نے میری قدر نہیں کی، لیکن میں اس دنیا میں اپنا جو ہے نا وہ چھوڑ کے جا رہی ہوں عورتوں کے لیے، اور ان خواتین کے لیے جو پسماندہ ہیں یا جو بالکل ہمت نہیں آ رہے ہیں، وہ میں ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی، اور میں اوپر سے ان کو ہے نا اپنا جو ہے وہ آشیواد دیتی رہوں گی. تو یہ اس جرنلسٹ کے الفاظ تھے جو انہوں نے، میں جو ہوں ابھی آپ کے ساتھ ہوں، اور میں بالکل بھی بیٹھوں گی نہیں، اور میں آپ کے ساتھ لڑتی رہوں گی. یہ چھوٹی سی کچھ باتیں ہیں جو مجھے اب یاد ہیں، اور مجھے پوری ایک اس کی جرنی جو ہے وہ 20 سال کی، 25 سال کی جرنی جو ہے، اس میں ایک دن بھی وہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھی. وہ 8 مارچ کا پروٹیسٹ ہو، وومن ایکشن فورم کا پروٹیسٹ ہو، عورتوں کے حقوق کے لیے کہیں بات ہو، تو ویرو جو ہے اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کون سا وقت ہے، کیسا ہے، میں کیسے جاؤں گی. لیکن اس نے یہ کہا کہ میں ضرور آؤں گی، اور جب حق کی بات ہوگی، وہ پوچھتی تھی اس میں عورت عورت کی بات ہوگی، میں نا بالکل ہوگی. تو وہ کہتی کہ عورت کی بات ہے تو پھر میں آؤں گی. تو میں بولتی تھی اچھا آ جاؤ. تو یہ ایک اس کمیونٹی کی خاتون ہے جو ہمیشہ حقوق کی بات کرتی ہے، اور جب آپ کے حقوق سلب ہوتے ہیں تو اس طرح کی خواتین جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک مشعل راہ بھی ہوتی ہیں، اور ان خواتین کے لیے بھی ایک چراغ اور مشعل کی طرح ہوتی ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ آپ نے بالکل بھی خاموش نہیں رہنا ہے اور اپنے حق کے لیے بات کرنی ہے. تو ہماری جب آواز وہ بن گئی، اور ان کمیونٹی، خاص طور پہ میں کولی کمیونٹی کی، اور جو بھیل کمیونٹی، اور وہ کمیونٹی جو آ، جو وہاں پہ زمینوں پہ کام کرتی ہیں، ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتا کوئی، اور وہ بڑے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہیں، تشدد کا شکار ہوتی ہیں. ان کے لیے تھوڑی سی ہمت پیدا ہوئی تھی، اور اب خواتین نے جو ہے ان کی اس اسٹرگل میں ان خواتین کے لیے وہ بڑا ہمت کا اور حوصلے کا پیکر ہوئی. اور اب بہت ساری خواتین جو ایسی ہیں جو آتی بھی ہیں اور اپنے کمپلین بھی کرواتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ ہم بھی ویرو کی طرح جو ہے لڑیں گے اور چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. تو ظلم کے خلاف جو ہے نا وہ یہ میں آخر میں یہی کہوں گی، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. تو یہ ویرو کا لوگو تھا. تو یہی میں کہنا چاہوں گی. بس یہ کہ سب سے یہی درخواست ہے کہ ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اور وہ بہت ہی ایک پیور سول تھی، تو اس پیور اور خوبصورت سول کے لیے دعا کیجیے گا. تھینک یو نائتا. بہت شکریہ پشپا کماری. ویرو کوہلن کی زندگی اور جس جرات مندی سے وہ زندگی کی تمام مشکلات سے لڑی. ویرو کورب بتا رہی تھی کہ ان کی جب وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی ان کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ ہے جو دیکھنے کو ملی، اور ہم سب کی وہ ہمت بتاتی بھی گئیں. جی کون سی ساتھی بات کرنا چاہیں گی؟ ابھی جن ساتھیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، عذرا میمن نے، بسم اللہ ارم صاحبہ نے، اور خانے وال سے رانی وحیدہ صاحبہ نے، ہما ارشاد،
मुख्तियार शाहीन ने मियाँ वाली से, और बाकी तमाम साथी आप प्लीज, हम वीरू कोहलन के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। बुशरा अ, तबस्सुम साहिबा आज़ाद जम्मू कश्मीर से, आज़ाद जम्मू कश्मीर को मैं दावत दूंगी कि आप बात करें अब वीरू अस्सलाम कोहलन वालेकुम। के याद में। वालेकुम जी अस्सलाम। इंशाल्लाह जरूर जी। अच्छा, आज की मीटिंग, आज का वेबिनार हमारे लिए एक बड़ा अहमियत का हामिल रखता है, क्योंकि आज हम अपने उस साथी के लिए बात करेंगे कि जो हमसे बिछड़ गई है, और बहादुर खातून नाहिदा जी। मैं एक बात, 2013 का प्रोग्राम था हमारा, हम यूथ हॉस्टल में ठहरे हुए थे, तो वीर कोलन पहले दिन के प्रोग्राम में उसने मुझे देखा, दूसरे दिन उन्होंने मुझे ढूंढा। दूसरे दिन ढूंढा तो मैं ऊपर वाली बिल्डिंग में थी, मैं वहां से नीचे उतरी थी तैयार होके, तो मुझे वहां से बाजू पकड़ा, मैं थोड़ी सी घबरा भी गई। मैंने कहा ये मुझे क्यों लेके जा रही हैं पकड़ के ना, क्यों मसा इन्होंने इस तरह मेरा बाजू पकड़ा है। तो मुझे आज भी वो दिन, वो बात याद है वीरू खोलन की, के कहने लगी आप किधर से हो। मैंने कहा मैं आजाद कश्मीर से हूँ। मुझे उन्होंने, अल्लाह के बहुत कम लोग हैं जो मेरे बाजू के मतलब एक दो मुलाकात में जज करते हैं कि बाजू मेरा नहीं है। उन्होंने मुझे एकदम से पूछा कि आपके बाजू को क्या हुआ है ना। मैंने बताया ऐसे, कहती मैंने भी बहुत सख्तियां देखी हैं बुशरा, लेकिन आप ग्रेट हो। तो मैंने जब उनकी बातें सुनी, मैंने कहा, मुझे उन्होंने बताया मैंने ऐसे इलेक्शन लड़ा, आपने हिम्मत नहीं हारनी, ये वो। मुझे आज भी उनकी बात याद है, जब उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मेरा हौसला बांधा। मैंने कहा कि ये एक हमारी साथी जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, एक ऐसे तबके, एक ऐसे मसला इलाके से तल्लक रखती हैं, इतनी बहादुर हैं, तो मैं क्यों ना फिर मेरे तो इलाके में इतने मसाइल ही नहीं है, इतनी रोकथाम नहीं है, इतने लोगों के इतना तशद्दुद नहीं है ना, इतना मैं क्यों ना आगे आऊं, मैं क्यों ना इसकी तरफ देख के अपना हौसला बढ़ाऊं। तो उस दिन से वेबिनार, ओ सॉरी, फंक्शन में, कॉन्फ्रेंस में इनसे हर बार मिलती थी, और ये मुझे ढूंढ के मिलती थी। पिछली दफा जब मिली हैं, मुझे दुख हुआ, मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने कहा ये बहुत वीक हो गई हैं, कि चल नहीं पा रही थी। मैंने इनका बाजू पकड़ा तो मुझे इन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद चलूंगी। तो बात ये है कि मरना सबने है, मौत ऐसी हो कि कोई बाद में किसी को याद करे। वीरू कोलन हमारी एक ऐसी साथी थी कि देखने में कुछ नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ थी। समझने में, समझ के बंदा किसी को समझे तो वो बहुत बहादुर औरत थी। देखने में एक देहाती औरत लगती थी, लेकिन उसके पीछे जो स्टोरी आज जो हमने दो हमारी साथी इन्होंने बताई है, मैंने बड़े गौर से बातें सुनी है इनकी। तो इन्हीं बातों से इंसान का दिल बांधता है, हिम्मत आती है, और याद रहते हैं लोग, ऐसे लोग हमेशा याद रहते हैं। वीरू कोलन हमारी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ होंगी, हमारी यादों में होंगी। वीरू कोलन के लिए मैं सलूट करती हूँ, मैं उनकी बहादुरी, उनके जज्बे, उनकी हिम्मत को मैं सलूट करती हूँ। और मेरी अपने अल्लाह से दुआ है कि ऐसे हौसले हमारी सब दही खवातीन में आए, कि हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए लड़ सकें, कि उनका हक उनको दिला सकें। और मैडम समीना के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, कि जिन्होंने हमें एक कोने से उठा के दूसरे कोने में जाके मिलाया, इधर से उठा के उधर की फीमेल को मिलाया, ये हमारी खुशकिस्मती है कि समीना नज़ीर जो है हमारे लिए एक तोहफा है, अल्लाह ताला ने दिया। वरना हम कहाँ, और वीर कोलन कहाँ, कि हम कहाँ से मिलते। अल्लाह ताला हमारे तमाम इमरान को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, और हमारी मैडम समीना को सलामत रखे। थैंक यू। आमीन। बहुत शुक्रिया बुशरा तबस्सुम साहिबा। मैं आप सब साथियों की गुजारिश से थोड़ा सा जो हमने उनकी वीडियो बनाई है, क्या हम वो देख लें, या पहले आप लोग बात करना जारी रखना चाहते हो? जी, दिखा दें। छोटी सी वीडियो बनाई है हमने वीरू कोहलन की
मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारे साथ शमूलियत ली है मैं उसके वर्क हवाले से, तो वो मैं प्लीज वो हम शेयर मैडम करना दिखा चाहते दें, हैं। मैं वर्कशॉप जी से जी उठ प्लीज। के इधर बाहर बैठी हूँ ताकि मैं देख के फिर अच्छा ठीक। वर्कशॉप शामिल हो जाऊँ। थैंक यू। ओके ओके, बहुत शुक्रिया जी, प्लीज वीडियो प्ले कर दें वाजिद। जी मैडम। हरिया प्लीज। जेको हिते आया आहियो, हिते असांखे सॾु कयो आहे पौधा वारनि जी। असांजे ॻोठनि में हली ॾिसो जिते आज़ाद नगर आहे, अहमदाबाद कॉलोनी आहे। मैं सिंध हैदराबाद से आई हूँ, वीरू मेरा नाम है। हम बांडर लेबर से हिसाब से काम करते हैं। हाँ, हम यही सोच रहे हैं तो हमारे पास गांव में कोई स्कूल होए जो को हमारे बच्चे तालीम हासिल करे। फायदा हमारे को ये होगा, को लोग सुनेंगे, कुछ गवर्नमेंट पर असर होएगा तो भाई लड़ियां करते रहते हैं तो कुछ न कुछ हमारे को फायदा बिल्कुल मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबकी तवज्जो का। आपने शायद गौर किया हो कि जिस वक्त वीरू कोहरन बोल रही हैं, तो हाल के अंदर जितनी खवातीन, ये आपका लोक विरसा का वही हाल है जिसमें भी आप लोग ओपन एयर थिएटर है जहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो तमाम लोगों के चेहरों पे, खवातीन के चेहरों पे कितनी वो जिंदगी और खुशी, कितने जज्ब से लोग सुन रहे हैं, उसकी झलक नजर आ रही है। तो बहुत जबरदस्त। हमने उनकी यादों को कल वाजिद हमारे कुलीग ने बड़ी मेहनत की है और सारी कॉन्फ्रेंस में से उनकी वीडियो, उनकी क्लिपिंग को इकट्ठा किया है। जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई उसके अंदर भी उनकी आ, आप सबके साथ साथ के मुख्तलिफ जो दिन हैं उनको इकट्ठा किया है जी। थैंक यू वाजिद, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू समीना, आपकी अप्रिसिएशन हमेशा जुर्रत देती है हमें आगे बढ़ने में। जी, कौन सी अभी साथी बात करना चाहेंगी वीरू कोहलन के हवाले से? पंजाब से आ जाए, बिस्मिल्लाह, इरम साहिबा हैं हमारे साथ। खैबर पख्तूनख्वा से अभी कौन है हमारे साथ? हम चाहेंगे कि वहां से भी किसी न किसी की जी प्लीज, हैंड रेज मुझे नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैं मैं बात करना चाहती हूँ। जी प्लीज हेलो, बात अस्सलाम कीजिए। वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। मैं आज जब वीरू की ये डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ तो मुझे वीरू की वो स्ट्रगल, जो कैसे वो एक ऐसे इलाके से उस वक्त एक जज्बा, हिम्मत और जुर्रत लेकर आगे बढ़ी। वो भी आम खवातीन की तरह जिंदगी गुजार सकती थी वो लेबर में, लेकिन ये सलाहियतें कुदरत की तरफ से होती हैं और मौके मिलने से होती हैं। पौधा का क्रेडिट जाता है हमारी बहन को एक मौका प्रोवाइड किया।
اور صرف وہ کانفرنس میں شریک نہیں ہوتی تھیں، وہ ہماری لیڈر ہوتی تھیں. میڈم سمینا کی ایک آواز ہوتی تھی اور وہ ان کے پاس اسٹیج پہ پہنچ جاتی تھی. وہ نہیں پڑھی لکھی تھی لیکن زندگی کا تجربہ، زندگی کی ہمت، ان کا جذبہ، جس انداز سے وہ اسٹیج پہ سمینا کے پاس کھڑے ہو کے نعرے لگاتی تھی، سب کو ویلکم کرتی تھی. آج ہم سب کہہ رہے ہیں کہ وہ چلی گئیں، وہ نہیں گئیں، وہ قدرت کا نظام ہے، لیکن وہ ہم سب کے دلوں میں رہیں گی، زندہ رہیں گی. اور وہ ایک تحریک بن گئی تھی، وہ ایک جذبہ بن گئی تھی، وہ ایک سوچ بن گئی تھی، جن کی بیس پر اب ان کے علاقے وہاں شامل ہوتی تھی. میں آپ سے 2-3 باتیں شیئر کروں گی. میں کراچی گئی تو وہاں پہ HRCP کی ایک میٹنگ تھی. آواز کا ایشو صرف میری طرف وہاں ہے، پہ باقی لوگوں پہ آ رہی ہے؟ وہ آئیں اور مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے فوری کہتی، او بسم اللہ. میں نے کہا جی ان کے ساتھ تحریک میں کام کر رہی ہوں. وہ اپنی زبان میں بتا رہی تھی. تو وہ اس قدر. اور اس کے بعد ابھی میں کانفرنس سے پہلے کی بات کروں گی کہ ایک آرگنائزیشن نے تو اسے خاص طور پر ہمارے ساتھ ہندو کمیونٹی سے جو بچیاں آئی ہوئی تھیں، انہوں نے، میں تو انہیں میڈم کہوں گی، وہ میرے لیے بہت قابل احترام تھی، میرے سے عمر میں بڑی تھی. میں نے ان کے بول سے، گفتگو سے بہت سیکھا. انہوں نے جب کہا کہ ہم ان کے بنائیں، میرا دل اس قدر خوش ہوا کہ دیکھیں ایک ایکسکیوز می، بسم خاتون اللہ کی ارم، بسم اللہ ارم، struggle ایکسکیوز می، اور تھوڑا اس سا اگر کو مائک کیپ کر لے میڈم، ایشو آ رہا ہے صرف بات ہر سننے میں. جگہ پہ اب تسلیم کیا جا رہا ہے. تو شاید وہ شروع کرنی تھی. وہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن بہت سارے پیغام جی جی. اچھا، وہ ایک جذبہ تھی، تحریک تھی، اور ہم سب نے ان کی تحریک کو لے کے آگے بڑھنا ہے. وہ آج صرف رول ماڈل بن گئی. اور اس سب اسٹرگل میں میڈم سمینا پودا کی ٹیم کی بہت بڑی کاوشیں. پودا کی محبتیں میں آپ کو کیا بتاؤں. پچھلی کانفرنس اٹینڈ کی، بسم اللہ اکرم فواد، بس اللہ کی طرف سے وہ اس نے ہمیں ملنا تھا اور ملاقات ہونی تھی. اس کے بعد میڈم چونکہ بہت سارے لوگ بسم اللہ ارم کو جانتے تھے، تو آپ یقین جانے مجھے کس خاتون کا میسج نہیں آیا کہ آپ کیسی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ بسم اللہ آپا ہم بہت پریشان ہیں، آپ ہمیں رپلائی کریں. یوں سمجھیں کہ میں نے اس دن کہا کہ یہ پودا کی محبتیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا اس قدر خیال رکھتے ہیں. کیونکہ ارم اور اکرم میں جو بہنیں، بلکہ میرے پاس وہ وائس میسج سیو ہے کہ آدھی پلیز بتاؤ، ہم تو ٹھیک ہوں، خیر و عافیت سے ہوں، لیکن بسم اللہ اور کورو کا جو مجھے افسوس ہے، یقین جانے ایک سادہ دل، باہمت، ایک جذبے کے ساتھ اور تحریک کے ساتھ وہ بات کرتی تھی تو اس کی ایک ایک لفظ میں پتا چلتا تھا کہ وہ اپنی عورتوں کی بات کر رہی ہے، وہ حقوق کی بات کر رہی ہے، وہ عورت کے آگے بڑھنے کی بات کر رہی ہے. ہم اسے ہمیشہ یاد کریں گے اور کانفرنس پر اس کی ہمیشہ کمی محسوس کریں گے. لیکن باقی خواتین اس کے مشن کو اگر جاری رکھیں گے، اور یقیناً جاری رکھیں گے، وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے گئی ہے، وہ ایک آپ کے لیے رول ماڈل ہیں. تو آپ اگر ان کے مشن کو بڑھائیں گے،
तो ये पौधा और हमारी बहन के लिए बहुत बड़े एजाज की बात होगी। यकीन जाने मुझे बहुत रोना आया, सेम उसी तरह जैसे कोई अपना चला जाता है। एक ही दिन में इन दोनों साथियों की वफात ने यकीन जाने हिला के रख दिया और जहन बहुत परेशान हुआ कि हमारे काफिले से 2 परिंदे उड़ गए। गो और भी बहुत सारे लोग हमारे काफिले में शामिल हुए हैं और होते रहेंगे, लेकिन जिनके साथ वक्त गुजरता है और जिनको आप बोलते और हिम्मत से बोलते देखते, उनको भुलाना इतना आसान नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। जिनकी हिम्मत से आप सब लोग हिम्मत पकड़ते हैं एक दूसरे को देख के, उनका यूं अचानक डार से बिछड़ जाना बहुत तकलीफ देह है, और उसको हमें मिलजुल के सबको संभालना है और उसके मिशन को आगे लेके चलना है। 2 हैंड रेज हैं, सबा अब्बासी साहिबा, ये भी हैदराबाद से हैं सबा, और फिर उसके बाद अज़रा मेमन। सबा प्लीज बात कीजिए आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अगर अपना प्लीज कैमरा भी ऑन कर लें, जो स्पीकर बोलता है, ये गुजारिश है हमारी, तो अच्छा लगेगा अगर आपके लिए आसानी रहे तो। जी सबा बात कीजिए प्लीज। जी मैम, 1 मिनट में वीडियो कर लूँ अपनी। आई थिंक सेटिंग में थोड़ा एरर है, मैं जब तक कर लेती हूँ। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा ये कि मेरी वीडियो में शायद कोई एरर आ रहा है, इस वजह से ऑन नहीं हो रही, मैं फिर कर लूँगी इंशाल्लाह। और मुझे ये बात जी बात करनी थी कीजिए। कि मैंने लास्ट टाइम जब पिछले साल वाला जो पौधा की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस टाइम मेरी वीरू के साथ मुलाकात हुई थी। और उस टाइम मैं उमरकोट में काम कर रही थी, जो से वीरू थी। तो जब हमारी गुफ्तगू वहाँ पे हुई, हम बाहर खड़े हुए थे, मैंने पिक्चर भी शेयर की है चैट बॉक्स में, वीरू के साथ, अपने पूरे ग्रुप के साथ वो खड़ी हुई थी। तब वीरू को जब मैंने थोड़ी अपनी बातें बताई, तो उसने अपने हिम्मत के बारे में जब बताया, तो वो आज जो हमारे मैं समझती हूँ जो मेरे अंदर वीरू जिंदा है। और जब मैंने उसकी एक ट्वीट देखी कि वीरू अब हमारे साथ नहीं रही, तो एकदम से एक झटका लगा कि मतलब ये क्या हो गया। मैंने एकदम से रिएक्शन भी यही किया कि मतलब ये क्या है। मैं समझी कोई फेक है या कुछ इस तरीके से। फिर पता चला 2-3 मेरी जानने वाली थी जो वीरू की बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड थी, तो उन्होंने कहा वाकई वीरू हमारे साथ नहीं रही। तो एक वो बड़ा था। दूसरी चीज, वीरू उस टाइम जो अभी आपने पॉलिटिक्स की बात की, उसकी जब वो इलेक्शन लड़ रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर थे, शर्जील इनाम मेमन साहब, उनके साथ जो खड़ी थी, तब मैंने उनको बताया कि मैं भी आना चाह रही हूँ, मुझे किस तरीके से आप गाइड करेंगी। तो उन्होंने कहा बेटा जिस पार्टी में जाओ, जिस तरीके से भी लड़ो, लेकिन जब कदम ठान लो ना तो पीछे नहीं हटाना। और मैं समझती हूँ आज मुझ में वीरू की हिम्मत जिंदा है। इसलिए मैंने आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी अगर मैंने ज्वाइनिंग की, उसमें मुझे कहीं पे पजीराई मिली, तो वो कहीं ना कहीं वीरू की सोच मेरे अंदर जिंदा थी, वीरू की हिम्मत मेरे अंदर जिंदा थी। और उनके वो अल्फाज के बेटा पीछे नहीं हटना, डट के खड़े हो जाना है, कुछ भी हो जाए। तो वो चीजें वीरू की मुझे, हालांकि वीरू से इतना बड़ा गहरा ताल्लुक तो नहीं था, लेकिन उन अल्फाज के साथ मेरी इस तरीके से एक ब्रिज बन गई वीरू के साथ, कि आज भी वीरू मेरे दिल में, मतलब मैं नहीं समझती कि वीरू हमारे बीच में नहीं है। वीरू हमारे दिलों में है और हम पे, हमारे दिलों पे हुक्मरानी कर रही है। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया सबा। जी अजरा मेमन साहिबा आप, और उसके बाद चैट में मैसेज आया है सफिया और जई से, फिर उसके बाद वो बात करेंगी, फिर मैं मियाँ वाली आऊंगी। जी अजरा बात कीजिए। अजरा साथी हैं हमारी, अजरा मेमन से दादू से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी वालेकुम हुई जो अस्सलाम। हमारे जो 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 भी सब जो रूरल वुमन लीडर्स हैं आज इस ताज़ियती मेड़ाके में साथ हैं, और इसमें सारा जो क्रेडिट है वो हमारे पौधा पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि
मेरा तो ताल्लुक वीरू से 2012 से है, पौधा कॉन्फ्रेंस में जब मैंने ज्वाइन किया तो वीरू, अब तब हम एक बस में आते थे कॉन्फ्रेंस में, पूरी सिंध की खवातीन साथ आते थे, बदीन से लेके मतलब वो रूट था, हर स्टेशन पे हम औरतें आती थी। तो उस टाइम जब मेरी बच्ची छोटी थी तो उसमें बहुत केयरफुल होती थी वीरू कुली, तो हमारा सफर में भी साथ रहा। और उसके साथ जो डॉक्टर साहब था हमारा, डॉक्टर हैदर, वो सारे ग्रुप को लीड करता था और वीरू ग्रुप को ना लीड करती थी। तो जो भी हमारे मसले मसाइल थे तो दौरान सफर, खाने पीने में, उसमें बहुत हमारी केयर करती थी। और वीरू हमारा बहुत एक असेट था। हम खवातीन का, हमारे वुमेन हैं, हमारा बहुत एक इम्पोर्टेंट असेट था जो हमसे चला गया। जाहिर ये एक नेचुरल चीज है, उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसकी स्ट्रगल है वो मतलब जिंदा है, उनकी स्ट्रगल। उसने बॉन्डेड लेबर के ऊपर जो काम किया, और एक मिनॉरिटी की खातून है, उसमें इतनी हिम्मत के वो एक, जैसे सबा ने बताया कि वो एक पीपल्स पार्टी के जो है उम्मीदवार है, उनके आगे खड़ी रही, उनको थ्रेट्स आए, उसकी कैंपेन में उसको इश्यूज आए, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो अपने मतलब मकसद पे कायम रही। तो ये उनकी बहुत अच्छी स्ट्रगल थी। उसने बॉन्डेड लेबर में जो अपने जो खानदान के जो अपने कबायली के जो लोग हैं उनको 25-30 लोग थे, उनको छुड़वाया। उसमें उनकी बहुत ये बड़ी स्ट्रगल थी। वीरू वुमन लीडर और वुमन राइट्स डिफेंडर थी हमारी, मतलब पाकिस्तान की, सिंध की। तो वो तो मैंने पहले बताया कि हमारा बहुत वो कीमती असेट्स था। और हमारी वीरू के साथ जो अटैचमेंट है वो रही है। और पिछले जब मैं अभी आई लास्ट वीक 31 को, तो मैं ग्रुप में देखा अचानक से वीरू की वो डेथ हो गई है। तो रात को मैडम समीना बहुत डिस्टर्ब थी, परेशान थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, अजरा आप आए, मैं वीरू के लिए बहुत परेशान हूँ। तो हम वीरू की जो बातें हैं, उनकी जो यादें हैं, हमने एक दूसरे से शेयर की। और दूसरे दिन फिर बिस्मिल्लाह अकरम का सुना कि उनकी वो हो गई है डेथ। तो बहुत शौक लग गया कि इंसान अचानक से कैसे चला जाता है। और खास तौर पे हमारी जो खवातीन हैं, वो जो हमारी स्ट्रगल करती हैं, और मतलब वो एक खाल पड़ जाता है, ठीक है ना, वो एक खाल पड़ जाता है। मैडम के ये लफ्ज थे कि अजरा किसी दिन हम भी ऐसे चले जाएंगे तो हम अपना मतलब। और मैं देखती हूँ मैडम के पीछे कितने लोग हैं, वो ड्राइवर, वो उनके गांव के लोग, वो उनके पीछे हमारी पूरी सोसाइटी है। हालांकि उनको मतलब अपना औलाद तो नहीं है, लेकिन हमारे पीछे सोसाइटी है। वीरू के पीछे एक सोसाइटी है, कम्युनिटी है, जिनको हम सपोर्ट करते हैं, जिनको हम आगे लाते हैं। तो ये या डॉक्टर साहब थे, पिछले साल डॉक्टर साहब की डेथ हो गई अक्टूबर में, हम कॉन्फ्रेंस में थे तो वीरू मेरे साथ थी एयरपोर्ट पे, उनको साथ लेके आई, फिर वहां पे होटल में भी साथ थे। तो जाहिर ही उनकी यादें हैं, उनके साथ जो हमने घड़ियां गुजारी हैं, वो तो हमें बहुत तकलीफ देती हैं कि भाई उनकी फैमिली के साथ तो हमारी इतनी नहीं है, लेकिन वीरू मैंने देखती थी अपनी कम्युनिटी की खवातीन को लेके आती थी, उनको आगे मतलब कॉन्फ्रेंस में उनको इंट्रो कराती थी, उनके लिंकेजेस डेवलप कराती थी। ये इसमें बहुत अच्छी खूबी थी। और डॉक्टर इनका बहुत अच्छे साथी थे, जो हमारे बहुत अच्छे असेट भी थे। तो खैर हम तो उनकी खाल को या उनके जो है वो हम फिल तो नहीं कर सकते, वो तो खाल रह जाएंगे, क्योंकि उनकी बाकी स्ट्रगल है, उनकी मेहनत है, और उनकी जिद्दोजहद है, उनको सलाम है, जिसके आज हम वेबिनार पे उसमें बैठे हैं। तो और तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनकी बहुत जो हम बातें करते हैं, क्योंकि मीरू के साथ हमने साथ गुजारा है, सफर किया है, और स्ट्रगल उनकी देखी है, तो बहुत मतलब तकलीफ हो रही है। सो बस पौधा की मेहरबानी है जो हम सब खवातीन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है पूरे पाकिस्तान से, जो ऐसी खवातीन को आगे लाती हैं, मिनाटी
खास तौर पे उसको हमें इम्पोर्टेंस मिलती है। हम जब कॉन्फ्रेंस में आते हैं हमें स्टेटस हमारा बढ़ता है, और यकीनन हम पौधा में जब से आए हैं वीरू का बहुत अच्छा स्टेटस बना था। उनका कद, उनकी इम्पोर्टेंस, उनका मतलब क्या है वो हमें ही पता है। सो वीरू के लिए हम जितना बोले वो कम है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अजरा मेमन। अजरा मेमन से अपने अल्फाज और जुमलों का जोड़ उन्हें बड़ा मुश्किल हो रहा था। समझ आ रही थी उनकी गुफ्तगू से, उनके लहजे से कि कितनी तकलीफ में है वो। यकीनन तमाम वो दही रहनुमा ख़वातीन जिन्होंने वीरू के साथ कुछ टाइम गुजारा है, या सालाना ही हमारी जो मुलाकात होती है जिसमें मिलती रही हैं, सब बहुत तकलीफ में। और मुझे अभी जब ये बात कर रहे हैं ना, तो जितनी गहराई से दुख से ये बात हो रही है, तो मैं कह रही हूँ कितना खूबसूरत ये ताल्लुक बना है पाकिस्तान भर की दही रहनुमा ख़वातीन के दरमियान में, कि जो हम शायद वीरू की फैमिली के पास सारे ना जा पाए, लेकिन हम सब आपस में बात करके तो अपना जो दुख है, अपना जो गम है, उसको भी कम कर रहे हैं। और उनकी जो कामयाबियां थी, उनकी जो जुर्रत थी, और जिस अंदाज से वो बाकियों की रहनुमाई करती रही हैं, एक बहुत मजबूत रहनुमा थी अपने इलाके की खवातीन के लिए, वो हमें हिम्मत, हम उससे हिम्मत भी ले रहे हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। तो ये खूबसूरती जो है पाकिस्तान की दही रहनुमा खवातीन की आपस में राबता कारी की, इसको जारी रहना, इसका जारी रहना बहुत अहम है, क्योंकि इससे ही पाकिस्तान की दही खवातीन की जो ताकत है ना, वो बढ़ेगी। जी मैं सफिया और अक्सई ने चैट में लिखा हुआ है कि वो बात करना चाहती हैं। सफिया, आप अपना माइक अनम्यूट करके आप बात कर लें, फिर मैं मियाँ वाली जाऊंगी क्योंकि उनका हैंड रेस है। जी अस्सलाम वालेकुम सारी वालेकुम बहनें। अस्सलाम और सफिया। जी मैडम कैसी हो? सब ठीक ठाक है? सारी पौधा की बहनें को मैं अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। और वीरू की सुनकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंची, मैं बहुत खफा हुई। मैंने हर साल उनके साथ मुलाकात की, और उसने भी मेरी भी हिम्मत बढ़ा दी, क्योंकि एक दफा मैं बैठी थी। और जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही जी है। आवाज आ रही है। तो मैंने वीरी से कहा कि मैं तहरीक इंसाफ से खड़ी हूँ और मुझे इमरान खान अच्छा लगता है। तो उसने कहा, और मैंने कहा कि मेरे भाई खफा हो गए। तो उसने कहा कि ना ना भाइयों की सुन और ना अबू की, जरूर आप इलेक्शन के भी खड़ी हो। सूरमी, और एक्सक्यूज मी, एक मिनट जी सफिया। सूरमी प्लीज अपना जी माइक बंद कीजिए, आपकी तरफ से शोर आ रहा है और मीटिंग डिस्टर्ब हो रही है। आबदा प्लीज, शुक्रिया। जी सफिया बात करें। जी। तो उसने मुझे हिम्मत दी, और उसने कहा कि किसी की भी ना सुन और ना किसी से डरो, और अपने मिशन में रहो। तो उनसे मैं मिली, और वो बहुत कम गो थी, बहुत नाइस औरत थी। और ऐसी थी कि जब मैं उन्हें देखती थी तो कहती थी कि ये देखने वाले देख चुके, और वो कहते नहीं कि समझने वाले समझ चुके। उसका चेहरा, उसकी वो फेज ऐसी थी कि बस लोग देखते ही रह जाते। और महफिल में वो यूनिक लगती थी, यानी हम सब लोगों से वो मुख्तलिफ थी। मैं जब उनको देखती थी लेकिन हर वक्त जब मैं जाती थी हर साल, तो उन्हीं के साथ में बैठती थी, और कुछ दो तीन बातें करती, ज्यादा बातें भी वो नहीं करती, कमगो थी। तो उनके पीछे मैं बहुत ज्यादा खफा हूँ, और आप सब बहनों ने इतनी बातें की कि मेरी बातों की जरूरत भी नहीं है। मेरी दिल की बातें सब लोगों ने की है, और बहुत खफा हूँ उसके पीछे, और बहुत अफसोस हुआ है। और आप मैडम का, समीना मैडम का बहुत शुक्रिया कि हम सबको मिलाकर और हमें एक फैमिली बनाकर, हमसे अपनी फैमिली भूल गई हूँ, और मैं कहती हूँ कि हम सब पाकिस्तान वाले फैमिली बन गए हैं। तो इसके पीछे बहुत मेरा दिल खफा है, और दुआ करती हूँ कि खुदा उसे बस हमें सब्र दे, और उसको जन्नत में जगह दे दी। आमीन। बहुत शुक्रिया सफिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह ताला आपको भी बहुत सेहत दे, आमीन अपनी आमीन। सेहत मेरे का सेहत ख्याल के रखा लिए करें। दुआ करे। आमीन आमीन। जी तो बहुत जी मेहरबानी। थैंक यू थैंक यू थैंक बहुत शुक्रिया सफिया। आपने अपनी मुलाकात जो वीरू कोल उनके साथ थी उस पर बातचीत की। मियाँ वाली से मुख्तार शाहीन है हमारे साथ। जी मियाँ मुख्तार शाहीन, अस्सलाम आप वालेकुम। क्या आवाज करना चाहेंगी? जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज आ रही है।
मैडम पौधा कॉन्फ्रेंस में 2013 से मैडम के साथ मुलाकात हुई थी और हर साल उनके साथ मुलाकात होती थी। यकीन करें कि इस हफ्ते हमने 2 लीडर खो दिए, मैडम बिस्मिल्ला और मैडम वीरू को, और जिनका अफसोस रहेगा क्योंकि इस साल उनको हमने नहीं देखा और उनकी कमी भी हमें रही है। मैडम एक बात हमने उनसे सीखी है कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन यकीन करें कि स्टेज पर आकर बोलना और धड़े से बोलना, हमें यकीन करें कि वो इतना कुछ सिखा गई है कि हम जब नीचे बैठ के उनकी वॉइस सुन रहे होते थे तो हमारे अंदर एक ऐसी हिम्मत पैदा होती थी कि हम भी उसकी तरह जाके बोलें और उसी तरह खड़े हो। यकीन करें कि मैम वो हर साल सिखा गई है, और जब भी वो हाल में मिलती, मुस्कुरा के मिलती, बस मुस्कुराहट देती। यकीन करें कि इस हफ्ते जो सानिया गुजरा है, हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाए ना। अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करें, उनकी कमी हमें हमेशा आमीन। रहेगी। ये पौधा ही का प्लेटफॉर्म था जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, हम लीडर बने और पौधा ही से हमने बहुत कुछ सीखा है। और आज पौधा के 2 मेंबर्स हम में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो टीम है इंशाल्लाह वो हमारे साथ हिम्मत पैदा करेंगे और वो भी हमारे साथ फ्यूचर में काम करेंगे। तो मैम उनकी कमी हमें हमेशा रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुख्तार शाहीन साहिबा जी। इनकी ये बात बहुत अहम है कि ये हमारी जो साथी है, इनके पास तालीम बहुत कम थी या ना होने की बराबर थी, लेकिन शऊर इनके अंदर जो था और जो लीडरशिप की सलाहियतें इनके अंदर थी, वो यकीनन उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ऐसे ही है, हर जो देहात की लीडर है, दई रनवा खातून है, उसकी कहानी और उसकी जुर्रत जो है वो काबिल तकलीद है बाकी सबके लिए। और वीरू तो एक बहुत अहम मिसाल रही है हमारे साथ जी। अभी कौन सी साथी बात करना चाहेंगी वीरू कोलन के हवाले से? मुझे कोई हैंड रेज नजर नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले रानी वहीदा साहिबा थी हमारी सीनियर साथियों में से। नाहिदा, जी मैडम। मैं ये कह रही थी कि जब तक कोई और हमारी साथी आती हैं, अगर बिस्मिल्लाह इरम हैं तो हमें थोड़ा सा बिस्मिल्लाह अकरम साहबा के बारे में भी बताइए। मेरी तो उनसे पहली दफा ही मुलाकात हुई थी, तो उनका भी हमें बहुत अफसोस है, और मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही थी अपने इलाके में। तो है बिस्मिल्लाह इरम जी जी, हमारे साथ? बिस्मिल्लाह है हमारे पास। मैं उनकी तरफ माइक भेजने से पहले उनके साथ जो पहली मुलाकात है उसका, पौधा को ज्वाइन करने का जो कंपोनेंट है वो क्योंकि वो बताना भी चाह रही हमारी हूँ बहुत जी। अच्छी साथी थी, और उनका भी हमें बहुत अफसोस है, और आज के दिन हम उन्हें भी याद करते हैं। थैंक जी यू। मैडम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह अकरम जो है वो सरगोदा से थी, और उन्होंने एक वेबिनार का जो पोस्टर है ना, उसको देखते हुए हमें राब्ता किया कि जी मैं भी मीटिंग को, वेबिनार को ज्वाइन करना चाहती हूँ। और वो वेबिनार में हमारी उनकी पहली मुलाकात हुई। और जब वेबिनार के अंदर बिस्मिल्लाह का नाम देखा तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह इरम आई हैं, लेकिन वो आगे सरगोदा और अकरम लिखा हुआ था। तो मैंने कहा मैं गलती पे तो नहीं हूँ? तो आगे से फौरन उन्होंने बताया कि जी नहीं, मैं बिस्मिल्लाह अकरम हूँ और मैं सरगोदा से हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारी एक साथी पहले भी है, उनका नाम बिस्मिल्लाह इरम है और वो डिस्ट्रिक्ट खानेपाल से हैं, तो इसलिए मैंने आपका नाम लेने में शायद मुझसे गलती हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट शेयर किया और अपना काम मुझसे पूछा कि पौधा सरगोदा में काम कर रहा है या नहीं। तो हमारी उनसे बातचीत मेरी ये चलती रही कि आप कैसे वोटर एजुकेशन के लिए कुछ जो एरियाज हैं सरगोदा में वहां पे काम करेंगी। तो उन्होंने सबसे पहले जो मुझे शेयर किया वो अपना वो डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी के लिए उन्होंने अप्लाई किया, और उसकी मेंबर बन के ना तो वो लेटर शेयर किया। ये देखे मैडम, मैंने सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी की मेंबर बन गई हूँ, और अब ललियानी में पहले भी मैंने काम किया और आगे भी करूंगी। फिर कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन के लिए उसको हमने रेफर किया, लेकिन किसी वजह से वो रह गई। उनका उनको यानी फॉर्म वगैरह या हमारी टीम की तरफ से राब्ता नहीं हुआ। तो इससे आगे की जो स्ट्रगल है वो बिस्मिल्लाह इरम बताएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हेलो। जी। अच्छा, ऐसा हुआ कि जब मैंने पौधा के वेबिनार में बिस्मिल्लाह अकरम का नाम सुना
तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई मेरा हमनाम मुझे मिला है। अब हुआ ऐसे कि जैसे ही वेबिनार खत्म हुआ, मैंने लिस्ट में से नाम निकाला, उससे राब्ता किया, तो बिस्मिल्लाह इस कदर खुश हुई। मैंने उसे कहा अच्छा आप मुझे अपनी तस्वीर भेजिएगा ना, तो फिर हमने आपस में तस्वीर का तबादला किया। उसके बाद ना कोई दिन होगा जिस दिन बिस्मिल्लाह और मेरा राब्ता नहीं हुआ होगा। वो एक्चुअली वो सोशल वर्कर थी, वो रेडियो के साथ मुंसलिक थी, वो सहाफत के साथ मुंसलिक थी, बहुत एक्टिव खातून थी सरगोदा से। अच्छा, उसकी और मेरी ना जब बात होती तो हमारे में बहुत सारी बातें मुश्तरका थी। उसके भी 2 बेटे, यानी हमने बहुत सारी चीजें, उसको भी अपने अब्बा से बेइंतहा मोहब्बत, और कहती थी कि मेरे अब्बा ने मेरा नाम रखा था ना, मेरे से पहले 4 बहन भाई फौत हो गया, तो जब मैं पैदा हुई तो मेरे वालिद ने मेरा नाम बिस्मिल्लाह रखा। अब हुआ ऐसे कि हम रोज ये प्लान करते थे कि पौधा की कॉन्फ्रेंस में हमने एक दूसरे को बाज़ाब्ता तौर पे देखना है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी आ रही मैम। मेरी आवाज आ रही है, आ रही है? आ रही है आवाज, और हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आपकी स्टोरी। मैंने बिस्मिल्लाह से कहा, मैंने कहा यार तैयारी कर ली कॉन्फ्रेंस पे जाने की? कहती किन दिनों में कॉन्फ्रेंस है? मैंने कहा वो तो 15, 16, 17 किया, आप ग्रुप में ऐड नहीं है। उसने कहा नहीं बिस्मिल्लाह मैं ग्रुप में नहीं। मैंने फोन बंद किया, मैंने फौरी नहीदा को फोन किया, मैंने हमजा को फोन किया, मैंने कहा बेटा हमजा आपने उसे शामिल करना था। मैंने उसे कहा अच्छा आप हमजा से राब्ता करें। वो मुझे कि आप मैडम समीना से राब्ता करें। मैंने कहा मैडम समीना तक अगर जाने की जरूरत पड़ी मैं जरूर जाऊंगी और मेरा वादा है कि मैं तुम्हें काम भेजा। फिर उसने मेरे से एक एक चीज पूछी। बहुत कम अरसे की दोस्ती थी लेकिन मुझे भूल नहीं सकता, उसने इजी पैसा करवा के मुझे फोन किया। फिर उसने मेरे से एक एक चीज पूछी कि होटल में कैसा इंतजाम होता है। वो होटल में पहली दफा आ रही थी, बताई कि नहीं आप ये ले आइएगा ये। फिर वो मुझे कहने लगी कि बिस्मिल्लाह आपने मुझे बहुत गाइड किया है, तो आप ऐसे करें, आपको क्या पसंद? मैंने कहा नहीं बिस्मिल्लाह मैं तो आपको देखने के लिए बेताब हूँ। जब वो वहां पहुंची उसने राब्ता किया, आप यकीन जाने वो कॉन्फ्रेंस में मेरे लिए एक बहुत प्यारी घड़ी का तोहफा छोड़ के गई। वो इतनी शुक्रगुजार थी, मुझे कहती मैं समझ रही थी हमारी मुलाकात खुद हम सब में घुल मिल जाती है। वो बहुत खुश थी और मुझे कॉन्फ्रेंस के 3 दिन मेरे साथ रही। हमने चाय खाना सब कुछ चीज पे। फिर कहती बिस्मिल्लाह हम ना तारुफ करवाता था, उस साथी ने चले जाने। मैंने कहा देखें ऐसे है कि हम नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे ना, फिर आपको भी मौका मिल जाएगा। मैं मैडम को कहूंगी आप खुद बोला करें ना। अच्छा, उसके बाद ना मैडम ऐसे हुआ कि वो उसकी ना मुझे आके कहती मैं ना रात गेस्ट हाउस में बड़ी परेशान हुई हूँ, मैं कमरे में अकेली थी। मैंने कहा फिर कोई बात नहीं, कुछ हल निकाल लेते हैं। कहने लगी क्या? मैंने कहा मैं हमजा से बात करती हूँ, आपको ना मैं अपने होटल में ले जाती हूँ। वो मेरे साथ मेरे होटल में गई, हमजा को मैंने बताया, वो वहां रही। हमने रात बहुत बातें की, उसने अपनी जिंदगी की स्ट्रगल बताई, उसने अपना सारी, जैसे ना हमारा एक ऐसा ताल्लुक बन गया। फिर उसने एक वीडियो बनाई, उसने कहा अच्छा सुबह YouTube के लिए वीडियो बनाएंगे। हमने वो वीडियो बनाई। वो इस कदर खुश थी कि आपने मेरी इतनी बड़ी टेंशन खत्म की और आप मुझे अपने साथ होटल में लेके आए। मैंने कहा ये पौधा के ना हम सब टीम के मेंबर हैं, हम देखते हैं अगर कोई खातून पहली दफा आती है उसको मुश्किलात होती हैं। फिर जब वो वापस चली, मैडम मैं आपको बता नहीं सकती कि
उसने मुझे एक एक लम्हे की खबर दी। मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, आपी बिस्मिल्लाह, मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बच्चों को आके तस्वीरें दिखाई हैं, पौधा का बताया है। अच्छा, अब उसके बाद ना वो मुझे फोन करके कहती थी अब हम दोबारा कब मिलेंगे, उसका यही जुमला होता था। मैंने कहा अच्छा मौसम ठीक हो गया ना, मैं सरगोधा आऊंगी या आप खानेवाल आइएगा। वो मेरे पास अभी उसके वॉइस मैसेजेस हैं जिसमें वो मेरा हाल पूछती थी, मैं उसके बच्चों का हाल, इस तरह से। जिस दिन नहिदा ने मुझे उसकी डेथ की खबर बताई, उससे एक दिन पहले उस बिस्मिल्लाह ने मुझे कहा कि आपने वो यार यूट्यूब पे वीडियो नहीं लगाई। मैंने कहा वो ना मैं थोड़ा सा हज का काम कर रही थी, कल लगाऊंगी बिस्मिल्लाह। लेकिन मैं आज तक इस बात पे मैं आपको बता नहीं सकी, वीडियो उसने मुझे कहा और मैं लगा ना सकी। फिर वो जब मैंने लगाई और उसने वीडियो में एक जुमला बोला, मैं अपनी नाम और हम नाम और बिस्मिल्लाह की तलाश। आप यकीन जाने वो जुमला जब मैं सुनती हूँ मेरा दिल को कुछ होता है कि बहुत 17 जुलाई से 31 अक्टूबर तक का एक सफर जो साथी बहुत गमगीन कर गई। और मैंने कहा कि जो उस दिन उसकी तबीयत खराब थी, उसका दिल घबरा रहा था, उसकी शायद तबीयत पहले भी खराब थी, और मैंने उससे कहा कि बिस्मिल्लाह घना क्यों फूलता है। आप यकीन जाने मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कोई एक अच्छी साथी मिली, उसने मेरे से अपने दिल दर्द की सारी बातें की और फिर वो दुनिया में ना रही। आप यकीन जाने मैं इन दोनों साथियों के लिए बहुत परेशान हूँ, और अब मेरा जिंदगी से यकीन उठी। हमारे लिए यादें थी। बिस्मिल्लाह को मैंने खाने के वक्फे में जाके लोक विरसा का म्यूजियम दिखाया, उसे मैंने बताया। वो चूंकि इस्लामाबाद पहली दफा गई थी, वो इतनी खुश थी कि मैडम मैं बता नहीं सकती। उसने फिर वो कॉन्फ्रेंस की न्यूज पेपर्स में मैंने उसे बताया शेयर की करनी है, आपने अपना काम जो पॉजिटिव हो, जो वो खवातीन के लिए बहुत काम करना चाहती थी। और वो मुझे कह रही थी कि मैं आपको बताऊंगी किन्नू की चुनाई में खवातीन को किस तरह के मसाइल होते हैं, पैकिंग में, यानी वो हर चीज से अवेयर थी। लेकिन उसको जिंदगी में मौका भी मिला पौधा की कॉन्फ्रेंस में आने का, लेकिन वो तसलसल शायद यादों की सूरत में तो जारी रहेगा। मेरा उसके साथ कॉन्फ्रेंस के 2 दिन और 1 रात गुजरी, और यकीन जाने मेरे दिल और दिमाग पर उसके असर हमेशा रहेंगे। मैं उसके बेटे शाजल को जब मैंने फोन किया, मैंने कहा बेटा मम्मा किधर है? उन्होंने कहा मम्मा की तो डेथ हो गई। यकीन जाने मैं वो अल्फाज सुन के ना मुझे आज भी नहीं भूलते कि ऐसा जुमला मुझे सुनने को क्यों मिला। लेकिन मौत बरहक है ना, हम अपने प्यारों को दफना के भी उसके बाद भी उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो इन दोनों साथियों के लिए बहुत सारी दुआएं। और पौधा से यूं लग रहा है कि हमारे जाने के बाद भी पौधा इसी तरह से कभी हमें भी याद कर रहा होगा। कहाँ नसरीन चली गई, नसरीन अवान चली गई, अब ये 2 साथी भी चली गई। यकीन जाने बहुत दुख के ये लम्हात हैं, लेकिन ये शुक्र अदा करते हैं कि चारों सूबों से, हर जगह से हम सब एक दूसरे के दुख दर्द को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सिर्फ लम्हात गुजार नहीं रहे, बल्कि वक्त से कुछ सीख रहे। थैंक यू बिस्मिल्लाह, आपने बहुत प्यारी यादें शेयर की। और मुझे याद है कि आप कितनी खुश थी, आपने मुझे बताया कि मुझे एक बिस्मिल्लाह मिली है, और क्योंकि आपका नाम इतना यूनिक है, तो जब मैंने ये खबर सुनी तो आप यकीन करें मैं खड़ी हुई थी, मैं बैठ गई, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। तो फिर मुझे
बताया, लेकिन हमारी सारी साथी जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहम है। और हम ये चाहेंगे कि हम उनको याद करते हुए हम उनके मिशन को भी आगे बढ़ाएं और किसी ना किसी तरह उनकी जद्दोजहद को आगे लेके चले। पौधा की तरफ से जो हमने ताज़ीती बयान दिया था वीरू कोलन के लिए, शायद आपने पढ़ा भी हो, तो उसमें जी हमने जी। ये मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान से कि वीरू कोलन के नाम पर एक फंड जारी किया जाए बॉन्डेड लेबर लिबरेशन के लिए। ये जिस मकसद के लिए उन्होंने सारी जिंदगी जदोजहद की कि जबरी मशक्कत के कैदियों को छुड़ाया जाए, और ना सिर्फ वो सिंध में छुड़ाती थी कैदी, वो साउथ पंजाब में भी जाती थी। और आम लोगों का ख्याल था कि वो सिर्फ हिंदू फैमिलीज को छुड़ाती हैं, लेकिन मुझे खुद उन्होंने बताया कि ये मुसलमान है और ये मुसलमान को मैं लेकर आई हूँ। उनके लिए मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन कोई चीज नहीं थी। वो अक्सर जो जाती थी HRCP के साथ, उसमें मुसलमान फैमिलीज भी होती थी जो जबरी मशक्कत की में उनको रखा जाता था। वो उनको भी उन्होंने बहुत सारी फैमिली को छुड़ाया, बल्कि ज्यादा जो थी वो मुसलमान फैमिलीज थी। फिर एक दफा उन्होंने मुझे रहीम यार खान से फोन किया कि मैं रहीम यार खान आई हूँ और यहाँ पे कुछ खानदान हैं और उनको मैं लाई हूँ और मेरे पास पैसे कम हो गए हैं, तो तुम मुझे पैसे भेजो, हमने वापस जाना है, हमारे पास गाड़ी का किराया नहीं है। तो बहुत उनकी अहम जद्दोजहद थी। और जब इलेक्शन में भी खड़ी हो रही थी तो मैंने उसको पूछा कि अच्छा फिर क्या करोगी पार्लियामेंट में जाके, तो उसने कहा कि मैं इसलिए जाना चाहती हूँ सियासत में कि मैं करना चाहती हूँ ये इसका जबरी मशक्कत को मैं खत्म करना चाहती हूँ। मैं इसके लिए मैं जाना चाहती हूँ कि बॉन्डेड लेबर को खत्म किया जाए। तो हमने ये मुतालबा किया है। मैं जो हमारी सिंध में साथी हैं पुष्पा कुमारी और हमारी जो HRCP से हमारी साथी पहली दफा आई हैं, हम आपको दावत देंगे कि आप आइंदा वेबिनार्स भी अटेंड करें। मैं चाहूंगी कि एक तो हम सूबाई सतह पे भी ये मुतालबा करें, हुकूमत सिंध से भी करें कि हुकूमत सिंध जो है वो वीरू कोलन के नाम पर वीरू कोहलन मेमोरियल फंड कायम करे, जिसमें जबरी मुशक्कत के लोगों की आज़ादी के लिए एक जदोजहद का सिलसिला जारी रहे। और वफाकी सतह पे भी हम जो ही कोई नई हुकूमत आएगी तो हम जरूर इसको आगे लेके जाएंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा, और अगर और भी साथी बोलना चाहती हैं तो नाहिदा आप इसको आगे लेके चलें। मेरा ख्याल है हमारे पास 5 मिनट ही रहे। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब कोई साथी बात करना चाहती है? एक तो ये बात कि समीना ने जो बात की कि वीरू कोहलन मेमोरियल फंड के क़याम का मुतालबा हमें सूबाई सतह पे भी और फिर बाद में वफाकी सतह से भी करने की जरूरत है। उसके साथ बहुत एक अहम बात जो मुझे जब वीरू कोहलन का ये वेबिनार की तैयारी मुख्तलिफ लोगों से बात करी थी, जो सामने आई है, जिसको पौधा हर साल ये बात करता है कि जो देहात की सतह पे या हर जगह पे जो सेहत की सहूलियात हैं, वो रियासत की एक बुनियादी जिम्मेदारी है। और वो मयारी और मुफ्त सेहत की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना भी हमें इस मुतालबे के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बीमारी के दौरान और बीमारी वीरू कोलन जैसी खातून जो बहुत सी लोगों के लिए मशले राह थी, उनके लिए फाइट करती नहीं, लेकिन खुद उन्हें जो जिंदगी के आखिरी अयाम थे उसके अंदर सेहत के मसाइल बहुत ज्यादा दरपेश थे, उनको सेहत की सहूलियात कितनी मुयस्सर आई, इस पे जो लोग में सिंध की हमारी बहनें हैं वो जरूर उनके घर जाएं और इसको समझें कि क्या क्या दुश्वारियां हायल रहीं। कि जाहिरी बात है मौत का जो वक्त है वो बरहक है, उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन क्या जो सेहत की सहूलियात हैं वो उन्हें प्रॉपर मिल सकी, उसमें पैसे की वजह से तो नहीं कहीं रुकावटें बनी, और क्या ये वो मुफ्त यकीनी थी। तो ये एक बहुत अहम मुतालबा है जिसको हम हर बार कहते हैं कि देहात की सतह पे भी अस्पतालों के अंदर ये सारी सहूलियात हों। तो इसको हमें, अगर आप लोग इंडोर्स करें तो हम इस मुतालबे को भी ऐड करें कि हर खातून की जो बुनियादी सेहत की जरूरियात हैं, जब खातून की हम बात करते हैं तो बहुत अरसा पहले हमने बात की थी, जब इस धरती को हम खवातीन और बच्चियों के लिए महफूज बनाने के लिए कोशां हैं, तो इसका मतलब है कि किसी
بھی انسان کے لیے یہ محفوظ جگہ ہوگی. اگر ہماری بچیوں کو اور خواتین کو یہاں چلنے میں، ہم اپنے حقوق کی جدوجہد کو لے کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی، تو وہ کسی انسان کے لیے بھی وہاں رکاوٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ کمزور طبقات میں سے ہے نا خواتین اور بچیاں، اور ان کو زیادہ تر ہم مواقع نہیں دیتے. جی پلیز سب سے گزارش اپنے کیمراز آن کر لیں، اور کوئی بھی اگر بات کرنا چاہ رہی ہیں ساتھی تو پلیز. ہینڈ ریز ہے صبا عباسی نے اگین. مختار شاہین آپ نے پہلے سے ہینڈ ریز کیا ہے، ابھی دوبارہ کیا ہے. سب سے گزارش ہے پلیز اپنے کیمراز آن کر لیں. سائمہ وہاڑی سے کافی دنوں کے بعد ہمیں نظر آئی ہیں. جی پہلے سے کیے جی اوکے، تھینک یو تھینک یو. سائمہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سورہ جمالی بھی ہیں، انہیں بھی موقع دیں. جی 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 میم السلام علیکم. وعلیکم السلام سغرا. دیکھیں آپ نے سنی کی پورا ویبینار، جو میڈم کی ان کے ساتھ میرا اتنا رابطہ نہیں ہوا تھا، میں اس کے بعد آئی ہوں. لیکن یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ماشاء اللہ سے پودا پاکستان ہم سب کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے، لیکن ہمارے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ شریک ہے، ہماری دردیوں کے ساتھ. اور جو نام ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں تو پودا پاکستان یاد رکھ رہا ہے. یہ پودا پاکستان کی اور میڈم سمینا کی یعنی کہ ایک بہت اچھی کارکردگی ہے کہ وہ سب لوگوں کو، سب عورتوں کو ویسے بھی ساتھ لے کے چل رہی ہیں. لیکن اگر اس دنیا سے کوئی جیسے ویرو کولن ماشاء اللہ اس کے کام کا سنا، ماشاء اللہ بہت بہت بہترین کام ان کا تھا. ہمیں ان سے مل نہیں سکی، یہ سمجھے کہ مجھے نصیب میں نہیں تھا، میں ان سے نہیں مل سکی. لیکن ماشاءاللہ ان کے کام کاج سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور پودا پاکستان کی طرف سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ یعنی کہ ہم لوگوں کے جانے کے بعد بھی وہ ہم کو یاد رکھ رہا ہے. تو میڈم سمینا نذیر کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم سب ساتھ ہیں. اور جو ابھی آپ نے کہا کہ یہ مطالبہ کرنا چاہیے نا ویرو کولن کے میموریل فنڈ کے حوالے سے، تو ہاں لازمی کرنا چاہیے کہ اس جیسے لوگوں کے لیے جو ماشاءاللہ سے غلام لوگوں کو آزاد کروا رہی ہیں، اتنی کوشش کر رہی ہیں، تو لازمی یہ فنڈ قائم ہونا چاہیے. اور ہم سب اس میں ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے، اور پودا پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. تھینک یو میم ناہیدہ، تھینک یو میم سمینا. اور بہت دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں اس دنیا سے چلے جانے کا، جیسے میرے کولن ہے یہاں بسم اللہ تھی، تو بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، جو آتا ہے اس دنیا میں وہ لازمی چلا بھی جاتا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے اپنے لوگوں کو، اور ایسے پیارے لوگوں کو جو عورتوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اگر اس دنیا سے چلے جائیں اور ان کا کام رک جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ کرے گا ان کا کام آگے چلے گا، اور ہم سب ان کا کام آگے لے کے چلیں گے. تھینک یو میم سمینا، بہت تھینک شکریہ، یو. بہت شکریہ سورہ جمالی صاحبہ. یقیناً ویر کولن کے کام کو سندھ کی تمام بہنیں اور ہم سب بھی جاری رکھیں گے، اس کاز کو، اس جرت کو اور دلیری کے ساتھ. جو خواتین کے حقوق کی جدوجہد ہے اس کو جاری رکھیں گے. سائمہ بطول آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے وہاڑی سے. سائمہ پلیز بات کیجئے، ہمارے پاس صرف 1 منٹ باقی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی بات کر لیں. جی تھینک یو ناہیدہ. میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے جس دن سے ویرو کی ڈیتھ کا پتہ چلا وہ بہت بہادر خاتون تھی، اور ان سے بھی زیادہ بہادر وہ ساری خواتین ہیں جن کے پاس آج اتنی ہمت اور حوصلہ ہے کہ وہ ویرو کے بارے میں بات کر رہی ہیں. میں تو اس وقت سے اپنی ہمتیں مجتمع کر رہی ہوں لیکن نہیں کر پا رہی تھی. تو ویرو سے میری لاسٹ کانفرنس پہ جو بات ہوئی تھی، مجھے ابھی بھی وہ بات اسی طرح سے، وہی ان کی وہ یلو ڈریس میں کی، ان کا ایک سب سے ڈفرینٹ سٹائل تھا. تو وہ یہ کہتی تھی ڈاکٹر صاحب چلا گیا، ہم نے بھی چلے جانا ہے. بالکل مجھے نا ویسے ہی یاد آ رہی ہے ان کی وہ بات جس دن سے میں نے ان کی ڈیتھ کا سنا.
اور دوسرا اسی آخری منٹ میں ایک بات اور میں ذکر کرنا چاہوں گی اپنی بہن بسم اللہ اکرم کا بھی، کہ جب ہم نے لاہور میں ایک کانفرنس کری اور اس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے ساتھ پودا والے گروپ میں جب لوگوں نے اس کی شیئرنگ ڈالی تو میں بسم اللہ کو نہیں جانتی تھی، انہوں نے مجھے پرسنل پہ جا کے واٹس ایپ کیا، ان کی وائسز میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، اور ان کا لاسٹ جو وائس تھا میں ابھی تک وہ سننے کی، اس کو اوپن کرنے کی ہمت نہیں کر پائی اپنے آپ میں. تو ان کا یہی تھا کہ ہم مل کے کام کریں، بلکہ میری ان کے لیے بات بھی ہو گئی تھی آگے. بس یہ زندگی ہے، لوگ چلے گئے، ہم نے ایک دن چلے جانا. تو واقعی ویرو کی زندگی اسی طرح کی تھی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جیو تو ایسے کہ زندگی کو رشک آئے، اور مرو تو ایسے کہ موت بھی کہے کون مر گیا یار. بہت شکریہ. جی یہ مختار شاہین پلیز اپنا مائک بند کر دیں. سمینہ پلیز کنکلوڈ کر دیجئے آج کے ویبینار کو، آپ زیادہ بہتر انداز میں سمرائز کر پائیں گی، کیونکہ اب تک 4 ساتھیوں کو، خواتین نہیں 5 رورل ویمن لیڈرز کو ہم الوداع کہہ چکے ہیں. پچھلے سال تک 3 تھیں، 2 اس سال ہمارے ساتھ شامل ہوگی. سمینہ مائک آن کریں گے. بس تھینک یو ناہیدہ، آپ نے بڑا اچھا ماڈریٹ کیا ہے، اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کی دعائیں جو ہیں وہ ویرو کی فیملی کے ساتھ ہیں. پشپا کماری سے درخواست ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا ویرو کی فیملی کے بارے میں مجھے پتا کر کے بتائیں، تاکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فیملی کے ساتھ بھی رابطہ رکھیں. نذیرہ جمالی کی بیٹیوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، نسرین نوان کی فیملی کے ساتھ رابطہ ہے. تو اگر ہماری یہ جو ساتھی ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں، بعد میں پتہ کر کے بے شک مجھے کال کر کے بتا دیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو بھی ہم ویرو کی آئندہ کی جدوجہد جو ان کی یاد میں ہم کریں گے اس میں اپنے ساتھ رکھیں. اور ایک دفعہ پھر ہم بہت دکھ بھی ہے، لیکن ہمیں اپنی ساتھی پہ بہت فخر بھی ہے، اور میں تو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے ان کو ملنے کا موقع ملا اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اور یہ ایسی ہی ہماری رہنما ہیں جن کی وجہ سے ہمیں حوصلہ اور جرت ملتی ہے، اور ہم انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے. تو آپ سب کا بھی بہت شکریہ جو آج کے ویبینار میں آئیں. اور ہم ایک کوئی سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، کوئی خط لکھیں حکومت کو، یا کوئی کیا طریقہ کریں کہ یہ جو ہمارے مطالبات ہیں ہم اس کو آگے رکھیں. اس پہ ہم جو ہمارے ساتھی ہیں سندھ میں خاص طور پہ ان سے بھی مشورہ کریں گے، اور وفاقی سطح پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ویرو کولن کے نام پہ کوئی نہ کوئی ایسا کام شروع ہو جو ان کی جدوجہد کو آگے جاری رکھے. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو. خدا حافظ. تھینک یو ناہیدہ. بہت شکریہ. تھینک یو سمینا. تھینک یو. خدا حافظ ایوری ون. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سب کو دعوت دیتی ہوں میں کہ اگلے ہفتے ہم COP 28 کے نام پہ جو ایک ویبینار کرنے جا رہے ہیں اس میں سب کی شمولیت بھرپور رہنی چاہیے. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سغرا بانو آپ کے ساتھ اور خواتین بھی تھیں، پلیز مجھے ٹیکسٹ کر دیجئے گا ان کے نام وغیرہ. اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ کافی اور خواتین بیٹھی ہیں جو اس ویبینار کو سن رہی تھیں. خدا حافظ ایوری ون.